ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਟਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਜਿੱਤ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ। ਇਕਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਯੂ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲਣ। ਬਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ DACP ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2023 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ। 2024 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਰੀਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਅਤੇ 2025 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰ DACP। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਯੰਤੀ ਮੈਮ, ਪੂਟਾ ਦੀ वर्किंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किस तरीके ਦਾ कामकाज होना चाहिए, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ? यस सर, ऐसा है, पूटा तो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक बॉडी है और हमें भी बड़ी खुशी है कि इतने सालों से हमारी यूनिवर्सिटी में हमने एक एसोसिएशन को चला के रखा है। लेकिन 8 सालों से जो हम देख रहे हैं इसकी वर्किंग का ही इशू है, क्योंकि सभी लोग टीचर्स हैं, कोई भी आए टीचरों के मुद्दे होने चाहिए और टीचरों के काम होने चाहिए। लेकिन वर्किंग में हम यही देख रहे हैं कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है कि कुछ फैकल्टी को जब परेशानी आती है तो पुट्टा कुछ भी नहीं करता। रादर कई लोगों का तो उन्होंने प्रमोशन रोका है, खुद जाके उन्होंने अपने मेंबर्स के प्रमोशंस रोके हैं। और उसके साथ ही अगर किसी को कोई चैलेंज आता है, कुछ लोगों को ये करते हैं और कुछ को ये बिल्कुल नहीं सुनते। फैकल्टी तो सब एक ही है, तो इसलिए सभी की बात होनी चाहिए। दूसरा एक जो डायलॉग वाली बात है, और यूनिवर्सिटी वो जगह है, वो साइट है जहाँ पे कि हम क्रिटिक कर सकते हैं, डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में और कोई जगह नहीं होती जहाँ पे कि हम ये कर सकें। उसको भी एक तरह से वॉइस, जो एकेडमिक फ्रीडम होती है, एकेडमिक वॉइस, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं है, रादर उनको रोकने की कोशिश है। ये 2 चीज़ें कि डायलॉग होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक जो प्लेटफॉर्म है। पूटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हर टीचर को अपना लगे, उसको लगे कि यहाँ पे ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो टीचरों को नहीं लग रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमको इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि मुद्दे तो सभी एक ही, सभी ग्रुप उन्हीं पे करेंगे। पेंशन है, एरियर्स है, सभी चीज़ें, लेकिन वो कैसे किया जा रहा है, हाउ इज़ इट बीइंग डन, जो प्रोसेस है उसका, आई थिंक वो एक बहुत ही क्राइसिस में है और उस पर काम होना चाहिए जी। थैंक यू जी। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਏਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਟਾ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਟਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਪੂਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੂਲ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ। ਪੂਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਔਨ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਿਆ,
ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਟੂ 65 ਈਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 2011 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 50 ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਪਰੋਚ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲ ਦ ਯੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 65 ਈਅਰ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 50 ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ, 200 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ FDO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 175 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ PhD ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੈਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ NFS ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। PU ਦੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 12 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਕੇ NFS ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ 3rd ਈਅਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੈਕਟਿਵਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਓਪਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਪੂਟਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਵੋਟ ਫਾਰ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਚ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿन फिर भी जी, पिछले 1 साल मैं पूटा के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रही और मैंने उनकी वर्किंग भी देखी, तो मुझे लगा कि जो पूटा स्टैंड करनी चाहिए, टीचर्स वॉइस, टीचर के लाइफ में उसके लाइफ स्टेजेस होते हैं। जैसे एकेडमिक एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिला, और टीचर के ऊपर जो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं उनके परवरिश के लिए कहाँ पर फुल टीचर कम्युनिटी उनके साथ खड़े होकर उनको सपोर्ट कर सके, उस पर कोई डायलॉग नहीं था। टीचर्स के ऊपर उनके पेरेंट्स डिपेंड होते हैं, उनके मेडिकल फैसिलिटी के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है? नहीं। तो मुझे लगा कि TVUF वो टीम है जिस पर ज्वलंत तरीके से टीचर्स की एक नीड को समझते हुए, तो मैं जैसे हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ी हूँ, तो मुझे लगा PGI पास ही तो है, तो हम 650 टीचर्स हैं, क्या हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते
कि टीचर्स ही नहीं जो कि सीनियर सिटीजनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं उन पे डिपेंडेंट इतने उनके ओल्ड पेरेंट्स हैं, तो उनके मेडिकल फैसिलिटी के लिए क्या हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं? 650 टीचर्स कोई छोटी मोटी स्ट्रेंथ नहीं है। तो टीचर्स वॉइस को बुलंद करना ही मेरी टीम का मकसद रहेगा, और हमें उन टीचर्स के लिए कैसे हम फैसिलिटीज़ मैक्सिमाइज़ कर सकें, हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं, उनके इंट्रा डिपार्टमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने समझी, तो उस आवाज़ को अनकॉम्प्रोमाइजिंगली बुलंद करना, यही मेरी टीम का मकसद रहेगा। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਪੂਟਾ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? सहयोग पिछले 3 साल से बढ़ रहा है, हमारी टीम भी बढ़ रही है, और जब आप किसी बड़े बदलाव की बुनियाद रखते हो तो एक चीज़ तो तय है कि समय भी लगेगा और मुश्किलें भी आएंगी, तो उनको तो दरकिनार करके चले हैं हम। अंकुर स्कूल जो हमने दान में दी हुई ज़मीन पे 60 साल पहले बनाया, तो पहला सवाल जो हमने पूछा वो ये पूछा कि ये कौन से डेमोक्रेटिक फॉर्मूला के तहत डिसाइड किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ के बच्चों का भविष्य है, जो टीचर्स दूसरों के परिवारों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, उनके खुद के बच्चों की जो ज़िंदगियां हैं वो ख़तरे में हैं। अंकुर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान बनाया जाता है कि जो भी वाइस चांसलर आएगा उसके स्पाउस को, तो अब वो स्पाउस कई बार इंटरेस्टेड होता है, कई बार नहीं होता है। तो जो सोसाइटी एक्ट है हमारा, उसके अंतर्गत जो हर साल चुनाव होने चाहिए थे, वो हमें उजागर हुआ कि आज तक एक बार भी चुनाव नहीं हुआ, और एक कन्वेंशनल तौर पे मान लिया गया कि कोई भी आएगा तो उसको गिफ्ट के रूप में हम वाइस चांसलर के स्पाउस को गिफ्ट के तौर पे अंकुर स्कूल देंगे। ये पहला सवाल था जो हमने उठाया। वो उठाया तो अब मैडम को बुरा लगा, अब बुरा लगा तो हमें भी बुरा लगा था, लेकिन हमें जब बुरा लगता है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन करेगा? वो पूटा करेगी। अपने मैनिफेस्टो में केशव मल्होत्रा जी और मृत्युंजय जी और नोरा जी की टीम ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अंकुर स्कूल में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अंकुर स्कूल का केस चल रहा है अभी, अंकुर स्कूल पे इंक्वायरी चल रही है अभी। अंकुर स्कूल में 86% जो है वो आउटसाइडर्स हैं। जो स्कूल हमारे लिए बना वो 14% उसमें पार्टिसिपेशन है। अंकुर स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने से हमारे जो टीचर्स हैं वो कतराते हैं। हमारे टीचर्स के बच्चे बाहर के स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, तो हमने कहा कि आप इसको बंद कर दो। आप ये एक प्राइवेट दुकान जो आपने यहाँ पे खोल रखी है, जिससे ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह के कड़वे सवाल हमने पूछे तो परेशानियाँ आएंगी। दूसरी बात, हमने कहा कि पिछले 3 साल से हम ट्रैफिक की मैनेजमेंट को कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चीफ ऑफ सिक्योरिटी जो हैं, जो फ़ोटो उतरवाने में माहिर हैं, और उनका सिक्योरिटी पे कोई ध्यान नहीं है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, उनको मालूम है इस बात का। कोई भी प्रेस से बंदा अगर जाए, हमारा साथी, एक बार क्यों नहीं प्रेस जाके पूछे सिक्योरिटी चीफ से कि आपका विज़न क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को लेके। साइकिलें चोरियाँ होती हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई भी घूमता है। हमने पिछली बार भी उठाया कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर लोग शराब पी के घुस जाते हैं। एक वार्डन को आपने सस्पेंड कर दिया तो क्या सॉल्यूशन हो गया? एक अप्रोच जो होनी चाहिए। रजिस्ट्रार हमारे जो हैं वो इस तरह काम करते हैं, एक टीचर होते हुए, कि झूठे कागजात बना के टीचर्स को फंसाने की कार्रवाई में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप ये बताइए कि जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनके पास 2-3 लोग हैं हेल्प करने के लिए। आप देखोगे उन्होंने वन पर्सन वन पोस्ट का पॉलिसी बनाया था, मैडम ने वाइस चांसलर जब आए थे। तो एक आदमी सुपरमैन बना देते हैं। ये आपको दिखाई देगा जब आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मोंगा जी, चारों तरफ मोंगा जी, मतलब एनईपी में भी मोंगा जी, ट्रैफिक में भी मोंगा जी, ड्रेनेज में भी मोंगा जी, इलेक्शंस में भी मोंगा जी, मतलब एक को सुपर हीरो। फिर एक एनएसएस में हमारे साथी हैं, रोज़ रोज़ यूनिवर्सिटी का पैसा खर्च करके आप प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स, कारपेट पे कारपेट, फूल गुब्बारे, सज धज के इकट्ठे होकर रोड पे चलना, मतलब एक हंगामा जो होता है ना, तमाशा बना दिया गया है हर मुद्दे का।
ये लोग पौधारोपण करते हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैंने आपकी बार अनिल ठाकुर जी को कहा भी, अंग्रेजी विभाग के साइड के जो ग्राउंड में हर साल पौधे लगते हैं, लेकिन वो पौधा अगला साल नहीं पकड़ पाते। हर साल पौधे लगते हैं यहाँ पे। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप एक तरफ पेड़ों को काट रहे हैं। मैं बिल्कुल खुलेआम ये बात बोलूँगा कि अनिल ठाकुर जी की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इस यूनिवर्सिटी का जंगल साफ कर दिया गया, इस यूनिवर्सिटी के लकड़ों को काट काट के ट्रॉली में भर के बाहर भेजा गया। और ये इल्ज़ाम लगाता हूँ मैं, एक्सियन ऑफिस के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। पुट्टा साइलेंट बैठी है। क्यों? क्योंकि मृत्युंजय जी को अपनी सर्विस काउंट करानी है, मृत्युंजय जी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मृत्युंजय जी को प्रधान बनना है, नोरा जी उनके दोस्त हैं, केशव जी उनके पितामह हैं। केशव जी को हमने ये कहा कि आप हमारे बुजुर्ग, आप हमारा साथ दीजिए। आगे आने वाली यूनिवर्सिटी में जो समय है, जो इकोसिस्टम होना चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें है। आप हमारा साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वो क्या कर रहे हैं? वो इंक्वायरीज बिठा रहे हैं, षड्यंत्रकारियों की तरह काम कर रहे हैं। और हम बिल्कुल चैलेंज के साथ ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि आप से जो बनता हो वो कर लें, लेकिन हम टीचर्स की वॉइस, एक सिंगल टीचर जगदीश राही जी हैं, एक चेयरपर्सन है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके साइड में एक बॉडी बना दी कि चेयरपर्सन भी है, फैसले भी नहीं ले सकता। भाई वो क्रिमिनल थोड़ी है। एक हमारे विनोद जी हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 3 साल से इतना धक्का हो रहा है, इतना धक्का कि ज़बरदस्ती इंस्ट्रक्शंस, इंक्वायरी चल रही है किसी टीचर के ऊपर, वो कंप्लीट नहीं है, वो कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, लीगल लिटिगेशंस में उलझे, उनको ज़बरदस्ती ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनके घर पे धमकियां पहुंचाई जा रही हैं। और ऐसे माहौल में आप देखिए कि मेरे साथ फिलॉसफी डिपार्टमेंट के टीचर खड़े हैं। ये कल मुझे दिखा रहे थे कि ये हमारा 20 साल पहले डिपार्टमेंट था, 16 टीचर्स होते थे, आज 3 टीचर्स हैं। भर्तियों का क्लेम जो पुटा के केशव मल्होत्रा ग्रुप ने कहा हमने भर्तियां करवा दी, किस चीज़ की भर्तियां करवा दी भैया? आपने ये देखा कि किस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? थिएटर डिपार्टमेंट एक टीचर के साथ चल रहा है, एक टीचर के साथ, जो इस यूनिवर्सिटी का आइकॉनिक डिपार्टमेंट है। क्या कभी वाइस चांसलर मैडम ने जाके देखा थिएटर डिपार्टमेंट की हालत क्या? मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर वो ये प्रूव कर देंगे, एक दिन भी रजिस्ट्रार और हमारे जो वाइस चांसलर मैडम है थिएटर डिपार्टमेंट के अंदर कदम भी रखा उन्होंने। ये जो बेरुखी है और सिर्फ अपने ऊपर कि हमें तो वाइस चांसलरशिप मिल गई, अब हम यहाँ 3 साल काटेंगे, 5 साल काटेंगे, जो हो रहा है वो होने दो। ये बेरुखी एक बहुत बड़े दर्द का कारण है टीचर्स के अंदर, और उस दर्द को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक चाहे कोई भी मुश्किल आए हम लड़ते रहेंगे। ये हमारा फैसला है जो हमने 3 साल पहले किया था। श्रीवास्तव जी ਹੁਣੀ ਸੁਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 3 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਰਡਨ ਫਿਰ ਗੈਸਟ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ पायदान तो खिसकता जा रहा है पीयू। मैं फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से आता हूँ और फ़िलासफ़ी में ये कहा जाता है कि एक तो हमारी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, और दूसरा ये कहा जाता है कि करेज। ये फ़िलासफ़ी का इतिहास रहा है कि जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है, सुकरात से लेके हम आगे तक आते हैं, फ़िलासफ़ी अगर देखिए जिस तरह से बढ़ती है वो, कि समय के साथ जो आवाज़ उठाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आज के इस पूरे कंज्यूमरिस्ट कल्चर में उन विषयों को तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है जिसमें कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकलिटी है, अप्लाइड है, लेकिन जो थ्योरी के विषय हैं, जो मानवीय संबंधों, मानवीय जीवन से डील करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया गया है। और इस मामले में फ़िलासफ़ी हो, थिएटर हो, तमाम जो भाषाओं के विभाग हैं वहाँ पे, तो अब सवाल ये है कि जो ये सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट हैं, ये पूरा एक माहौल बनाते हैं कैंपस का। अगर इनमें नहीं नियुक्तियाँ होती और इसमें कम आवाजाही होती है तो कैंपस, पूरे कैंपस का माहौल बिगड़ जाता है, और जो कि हम पिछले 15 सालों से देख रहे हैं। अब आप देखिए कि कैंपस में एक तो टीचरों के बीच भय का माहौल है। सबसे बड़ी बात ये है, जो मैंने बात कही कि करेज की, फियरलेसनेस की,
करेज कब आता है? करेज किसी को भी हो तब आएगा जब उसके साथ कोई हो। और पूटा का जो काम है, वो जो सबसे नीचे जमात पे टीचर बैठा है, जो दूर से आया है यहाँ पे, जिसके अपने मुद्दे हैं, क्योंकि उसको साथ नहीं मिल रहा है, ऐसा स्पेस नहीं है पूटा के पास। अब आप एक ये मजाक बन जाता है कि पूटा का ऑफिस पूरे साल में 2-3 बार खुलता है जब उम्मीदवारी के पर्चे भरे जाते हैं। किसी को 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि पूटा का ऑफिस कहाँ है। हम लोगों का ये विज़न है कि पूटा के ऑफिस की जगह टीचर सेंटर बनना चाहिए कैंपस में, जैसे स्टूडेंट सेंटर हो। और एक बार टीचर सेंटर बनेगा, लोग जाएंगे, आपस में बातचीत शेयर करेंगे, जो हम तमाम बात करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, इंटर डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, साइंस और फिलॉसफी को साथ होना चाहिए, म्यूज़िक फिज़िक्स को साथ होना चाहिए। जब टीचर ही होके नहीं होंगे, अपना शेयरिंग का वर्ड नहीं क्रिएट करेंगे, तो कैसे कोर्स बनेगा? सवाल इसका है कि हम कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो उसकी बुनियाद होता है। यहाँ पे एक अकेलापन, एक अवसाद, एक फ्रस्ट्रेशन की हालत है टीचरों के बीच। अगर आप जाएंगे, उन्हें टटोलेंगे तो आप पाएंगे। हम लोगों का पूटा का, और जब हम लोगों ने ये TUVF का गठन किया, अब ये भी एक अजीब सी बात है कि लोग अब चुनाव लड़ने में डरते हैं, टीम पूरी नहीं होती। हमें 3 साल लग गए संघर्ष करते, अब हमें टीम पूरी हो रही है। लोग इससे डरते हैं कि आपके साथ आ जाएंगे तो कहीं हमारी प्रमोशन ना रुक जाए, हमारी फाइल नहीं खसकेगी। ये कमाल की बात है। पूटा तो वॉच डॉग है ना, पूटा तो आपको कहीं ना कहीं सहारा देने के लिए है। और पूटा ही अगर रोकने लगे, जैसे अभी सुधीर जी बात कर रहे थे कि बड़ी सेलेक्टिव अप्रोच है, जब तक आप उनको अप्रोच नहीं करोगे किसी बंदे को, पूटा को तो खुद अप्रोच करना चाहिए टीचरों के जाके, और उनमें एक कॉन्फिडेंस होगा, बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि हम लोगों का ये TUVF का बनाना और चुनाव में भागीदारी, मैं तो बड़ा अकादमिक, और पूरे कैंपस में आप देखिए तो मेरी जो एक इमेज है बड़ी अकादमिक रही है। शुरू से प्रोजेक्ट किया मैंने और पेपर लिखे, ये फिर मुझे लगा कि मैं क्या एथिक्स पढ़ाता हूँ मैं, और मैं खुद ही अगर नहीं एथिकल हुआ तो फिर मेरे एथिक्स का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस मामले में हम लोगों का मेन काम तो एक पूटा में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक स्पेस क्रिएट करना जिसमें कि बातचीत हो, संवाद हो, तो बड़े मुद्दे तभी सॉल्व होंगे। बड़े मुद्दे किसी एक आदमी से मिल के सॉल्व होने वाली चीज़ नहीं होती, उसके लिए सड़कों पे आना पड़ता है, अपनी वॉइस को बुलंद करना पड़ता है, तब बड़े मुद्दे होंगे। और छोटे मुद्दे की जो सॉल्व करने की बात है, वो हम जब आपने बैठेंगे, जैसे चेयरपर्सन और फैकल्टी मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें क्या बड़ी बात है, साथ में चाय पिए, बातचीत किए, हो गया सॉल्व। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो क्या मना करेगा? लेकिन जब उसकी राजनीति होती है, जब एक आदमी को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे को कम देते हैं, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस कम होता है, एक संवाद कम होता है उसमें, और फिर तमाम तरह के और छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। जी अशोक जी, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ पूटा ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी, मैं तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके TUVF जो है, जिसका गठन हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मेरे टीचर साथियों से अपील कर रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का एक जो स्वतंत्र एसोसिएशन होती थी, जो एक प्रेशर ग्रुप होता था, मैं कई सालों से मैंने ये अनुभव किया है कि वो प्रेशर ग्रुप धीरे धीरे जाके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सत्ता के साथ जो है उसका कहीं ना कहीं संबंध, सत्ता के साथ उसका मोह हुआ है। और उसके साथ होने के साथ कारण क्या रहे कि टीचर साथियों की जो आवाज़ जो है वो धीरे धीरे दबती जा रही है। पिछले साल हमने जो संघर्ष किया, आप उसके आंखों देखा, आपने उसके गवाह हैं। मुझे एक जिक्र मैं ज़रूर टीचर साथियों के सामने करना चाहूँगा कि पिछली बार बारिश के दिनों में भी हम वाइस चांसलर ऑफिस के जब बाहर खड़े होते थे, और 2-3 बार जब वहाँ से नोरा साहब और मृत्युंजय और उनके जो हमारे कर्ता धर्ता प्रोफेसर केशव जी वहाँ से जाते थे, मैंने पीछे से आवाज़ मारी कि मैं नोरा साहब, हम भी आपके साथी हैं, बैठे हैं, पूछ तो लो हमारे से कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। आप मान के चले साथी कि उन्होंने हमारे पास नहीं आए, और हमें इतना दुख हुआ।
हमने ये सोचा कि टीचर एसोसिएशन बनने के बाद भी अगर इनके मनों में ये बात है तो एसोसिएशन नहीं है, सिलेक्टेड लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने बेसिकली समस्या ईगो ਕਲੈਸ਼ਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕहीं ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਾਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, यूनिवर्सिटी ਦੇ ਉੱਪਰ, सारिया चीज़ों के ऊपर इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। आज पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है और पंजाब यूनिवर्सिटी को जहाँ होना चाहिए था, मुझे लगता है कि जो आपने बात कही कि ईगो जो है, ईगो तो है, अगर ईगो ही नहीं होती, अगर काम होते पंजाब यूनिवर्सिटी में, आप मान के चले टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट का गठन होता ही नहीं। हमने बड़े नज़दीक से देखा इन लोगों को कि पूटा में आने के बाद जिस प्रकार का यहाँ कार्यकलाप हुआ है, जिस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, वो बड़े खतरनाक है। और मैं तो अपील मेरे टीचर साथी जो हैं और ख़ासकर नौजवान जो साथी आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, हम उनसे अपील करना चाह रहे हैं कि ये जो फ्रंट जो है आपका और जो पूटा आप बनाने जा रहे हैं 2 तारीख को, आपका वोट बड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा आपको। अगर वही बार बार वही जाति, वही धर्म, ये मेरा, ये तेरा, और बार बार प्रेशर डाल के जो वोट दिलवाए जा रहे हैं, मुझे लगता है अगर इसी प्रकार से चलता रहा, संघर्ष लंबा है हमारा उपवास भी किया गया, हमारा विरोध भी किया गया, सत्ता पक्ष के साथ जो हमारे संबंध स्थापित किए गए वो भी मुझे पता है, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए उस फ्रंट में आज खड़े हैं जहां टीचर की वॉइस है, जहां एक फ्रंट है, वहां सभी की बात सुनी जाती है। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई विरोध नहीं है। हम अगर हमारी पूटा आती है, हमारा अगर टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट अगर बनता है, मैं पूरे टीचर साथियों के साथ और मैडम हमारी अथॉरिटी जो है उनके साथ भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूटा आपकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टेटस, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो नाम है, मुझे लगता है धीरे धीरे जा रहा है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम वो माहौल मेरे साथियों को दो जो जिक्र किया हमने, टीचर सेंटर क्यों ना हो, जब स्टूडेंट सेंटर टीचर सेंटर होना चाहिए, हमें बैठने नहीं दिया जा रहा। तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से मेरे टीचर साथियों से अपील करना चाहूँगा, वो अपना वोट, कई बार मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था अंतरात्मा से, आज मैं भी उसी बात का कर रहा हूँ कि बार बार अगर संघर्ष करेंगे और बार बार रोका जाएगा, वो बड़ा खतरनाक होगा, चाहे वो किसी भी संस्थान के लिए हो, चाहे व्यक्ति के लिए हो। मैं एक बार फिर मेरे टीचर साथियों से अपील कर रहा हूं कि 2 तारीख को होने वाले चुनावों में टीचर वाइस यूनाइटेड फ्रंट को जो है आप वोट दें। 1 साल हमारा काम देखें, अगर हमारा काम नहीं हुआ, मैं गारंटी के साथ आपको ये बात कहना चाह रहा हूं, बड़े सोच समझ कर बात कह रहा हूं कि हम आपसे वोट नहीं मांगने आएंगे। एक बार आप टीचर साथियों हमें आप विश्वास दें, आप हमें वोट दें, हमारा कार्य करने का तरीका देखें। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी बातों को समझेंगे और हमें विजयी घोषित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਵੌਇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ तमाम ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ तमाम ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।